أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سمعت فاطمة
أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة، فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا، فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة إيتيني بالكساء اليماني فغطيني به، فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به، وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤاد. فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك، فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤاد. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك، فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وساحب لواء قد أذنت لك، فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ وقال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك، فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامة، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم،
إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال جبرائيل: يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرؤك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي لأبي: يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي: والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرق. فقال علي: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا: يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي: إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम नाना के रोज़े, सलाम माँ के मज़ार, सलाम नाना के रोज़े, सलाम माँ के मज़ार। चला मैं वादा निभा
चला मैं वादा निभाने, सलाम माँ के मज़ार, सलाम ना के रोज़े, सलाम माँ के मज़ार। मैं तेरा दीन बचाऊंगा ऐ मेरे नाना, मैं अपना खून बहाऊंगा ऐ मेरे नाना। हुसैन जाता है मरने, हुसैन जाता है मरने, सलाम माँ के मज़ार, सलाम नाना के। मेरी शरीक सफ़र बन के साथ चल अम्मा, सफ़र पे जाता हूँ कपड़े मेरे बदल अम्मा, लिबास खुल्द सजा दे, लिबास खुल्द सजा दे, बदन पे फिर एक बार सलाम। दुआ करो कोई सर बेर्दा न हो अम्मा, नमाज शौक़ शहादत क़ज़ा न हो अम्मा, न आए मेरे चमन पे, न आए मेरे चमन पे, सितम की गर्दो गुबार, सलाम ना। तुम्हारे जैसा है नाना ये मेरा लाल अकबर, दुआ करो न लगे इसको आसमां की नजर, लुटे न दूर वतन से, लुटे न दूर वतन से, हमारा दिल का करार, सलाम नाना के रोज़े। है एक फूल तो ऐसा जो खिला भी नहीं, ना पाए पानी तो कर सकता वो गिला भी नहीं, वो जिसके दीह से आती, वो जिसके दहन से आती है दूध की महका, सलाम ना के रोज़। मेरी सकीना कहाँ और रसन का बंदना कहाँ, ज़मीन गर्म पे चलना उसे पसंद कहाँ, कदम वो फूल से नाजुक, कदम वो फूल से नाजुक, वो रास्ते है दुश्वार, सलाम ना के रोज़े, सलाम माँ के मज़ार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन,
हबीबना व नबीना व शफीना अबुल कासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरिल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कुल इन्ना स्वलाती व नुसूकी व महयाया व ममाती या रब्ब ज़हरा बिहक़्क़ि ज़हरा इश्फ़ सद्र ज़हरा बिज़ुहूरिल हुज्जा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहम। या वली अलाफिया नस्अलुका लाफिया आफियत दीनी व दुनिया वल आखिरा। हाज़रान मजलिस, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि अब आप हमारे दस्तूर को जानते होंगे कि अपने कलाम से आगाज से पहले दर अहल बैत से एक एक हेल्थ टिप या तिब्बी नुस्खा जो हदियतन हम आपको देते हैं। तो आज का हेल्थ टिप और तिब्बी नुस्खा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहम। रसूल फरमाते हैं कि ऑलिव्स को खाया करो क्योंकि वो एक अच्छी गिज़ा है। जैतून ऑलिव्स को खाया करो क्योंकि वो एक अच्छी गिज़ा है। वो आपके चेहरे को रोशन बनाती है, चेहरे पर नूर लेकर आती है, आपके गुस्से को कम करती है, आपको कफ से निजात देती है और आपके अंदर कई बीमारियों से लड़ने की कुव्वत को पैदा करती है। और वो एक अच्छी गिज़ा है जिसका जिक्र कुरान में किया गया है। तो ये कुछ ऑलिव्स के फायदे हैं। और इनमें एक और फायदा ये है कि रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि ऑलिव्स को खाने से आपकी बॉडी का नर्वस सिस्टम मजबूत होता है। तो ये एक हदिया हमारी तरफ से हेल्थ टिप का। एक दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद व अज्जिल फरजहम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तमाम तारीफ और तौसीफ उस मालिक परवरदिगार के लिए कि जिसने इस दुनिया को खल्क किया। और तमाम तारीफ उस खुदा को ज़ेब देती है कि जिसने आसमान का शामियाना लगाया और ज़मीन का फर्श बिछाया। तमाम हम्दो सना उस मालिक यख्ता के लिए है कि जिसने ना सिर्फ ये कि दुनिया को खल्क करके छोड़ दिया बल्कि बेहतरीन अंदाज से उसके निज़ाम को चलाया। तमाम तारीफ उस माबूद यकीनी के लिए कि जिसने इस अपनी तमाम मखलूकों में से इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया। ना सिर्फ ये कि अशरफुल मखलूकात बनाकर छोड़ दिया बल्कि अशरफुल मखलूकात बने रहने के लिए बेहतरीन दीन इस्लाम की हिदायत की। ना सिर्फ ये कि दीन को अता करके छोड़ दिया बल्कि दीन को सिखाने के लिए 1,24,000 पैगंबर के सिलसिले को चलाया। और खातिमुन नबीईन के बाद 14 मासूमीन जैसी हस्तियां हमें अता की कि जिन्होंने अल्लाह के दीन को हम तक पहुंचाया। और अपनी आखिरी हुज्जत साहिबुल अस्र व ज़मान अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहम अपनी आखिरी हुज्जत को आज तक हमारे सरों पर कायम रखा है। अजीज़ान मोहतरम, आज हम इस मजलिस के लिए आज हम इस मजलिस को क्यों कंडक्ट कर रहे हैं? व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ टुडे? आज के रोज क्या हुआ था? जैसा कि हम सब जानते हैं कि 28 रजब 60 हिजरी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीने से अपने सफर को शुरू किया था। थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं हम हिस्ट्री के 25 या 26 रजब को, क्योंकि रजब के इस महीने में मौविया लानतुल्लाह अल्लाह उस पर लानत करे वो वासिले जहन्नम हुआ था। और फिर उसने अपने बेटे को यजीद को अपने तख्त पर अपना वारिस डिक्लेयर किया था।
सबसे पहले तो कि ये मुआविया की तरफ से सबसे बड़ी कोताही और सबसे बड़ा एक फ्रॉड था, क्योंकि जब इमाम हसन से उसकी सुलह हुई थी तो उस सुलह में एक शर्त रखी गई थी कि मुआविया अपने बाद अपना जानशीन डिक्लेयर नहीं करेगा। तो ये सुलह को तोड़ा गया, अपने वादे को तोड़ा गया, और यजीद को मुआविया की जगह पर रखने की कॉन्स्पिरेसी की गई थी। फिर जब यजीद तख्त पर आया तो उसने हर जगह जहां जहां तक मुस्लिम मुस्लिम्स का रेन था वहां तक उसने बैयत लेना शुरू किया सबसे कि यजीद को अपना अमीर आप तस्लीम करें। और जब ये बात वलीद तक पहुंची जो मदीने का गवर्नर था, तो वलीद ने पैगाम को भिजवाया है इमाम हुसैन के पास। दिस इज द हिस्ट्री ऑफ 25th और 26th ऑफ माह रजब सन 60 हिजरी। इमाम हुसैन अपने असहाबों के साथ रोज़े रसूल पर तशरीफ थे। तो वहां पर वलीद का पैगाम आता है कि वलीद ने आपको बुलवाया है। अब चूंकि इमाम जानते थे कि आगे क्या होने वाला है, इमाम अपने घर पर आए और बीबी जैनब से मुलाकात की। और इमाम फरमाते हैं कि ए मेरी बहन, वलीद ने दरबार में बुलाया है। अब बीबी जैनब क्योंकि जानती है कि हालात कैसे है, सिचुएशंस कैसी है, कि मुआविया के बाद यजीद का ये सब कुछ चल रहा है कॉन्स्पिरेसी, बीबी कहती है कि मैं आपको तन्हा नहीं जाने दूंगी। बीबी ने तमाम बनी हाशिम को साथ में भेजा है इमाम हुसैन के। और फिर जो आगे मसाइब के जुमले हैं कि किस तरह से इमाम गए हैं और वलीद ने बैयत का तकाजा किया और इमाम ने बैयत नहीं की, और फिर इमाम को इस सफर के लिए मजबूर किया गया कि अपने वतन को छोड़ कर जाए। अजीजा ने मोहतरम, ये रोज जो आज हम इस मजलिस को मुनक्किद कर रहे हैं, आज ये रोज को हम हिस्ट्री में एक इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, क्या मैसेज या क्या लेसन हमें इस दिन से मिलता है हिस्ट्री में? क्यों इमाम हुसैन अपना वतन, अपना घर, अपने बच्चे, अपना कंफर्ट जोन छोड़कर हिजरत कर रहे हैं? क्यों इमाम हुसैन सफर पर निकल रहे हैं? क्या वजह है इस सफर की? कि खुदा राजी हो जाए, दीने मोहम्मदी बच जाए, चाहे उसके लिए इमाम का घर तबाह हो जाए, चाहे उसके लिए इमाम की नामूस पर जुल्म हो, चाहे उसके लिए 6 माह का बच्चा अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाए, सब कुछ गवारा है। एवरी कॉम्प्रोमाइज टू बी मेड इज फाइन, बट नो कॉम्प्रोमाइज इज टू बी मेड ऑन अल्लाह। कि अल्लाह की रजा में कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो, बाकी सारे सैक्रिफाइसेस, बाकी सारे कॉम्प्रोमाइजेस हुसैन इब्न अली को गवारा। अजीजा ने मोहतरम, हम वो मजलिस अटेंड कर रहे हैं कि जिसमें इमाम हुसैन ने अल्लाह के लिए सब कुछ छोड़ दिया। हम अल्लाह के लिए क्या छोड़ सकते हैं या क्या छोड़ते हैं? हमने अपनी जिंदगी में अल्लाह के लिए क्या छोड़ा है कि हमें पसंद है मगर छोड़ रहे हैं कि अल्लाह राजी हो जाए? क्या हमने अल्लाह को उस तरह से राजी किया है? क्या फरमाते हैं इमाम हुसैन इसी सफर के दौरान दुआए अरफा में? इमाम हुसैन क्या फरमाते हैं? उसने क्या पाया जिसने तुझे खो दिया, और उसने क्या खोया जिसने तुझे पा लिया? किससे कलाम है ये इमाम का? खुदा से। कि इमाम कह रहे हैं कि सब कुछ चला जाए, अगर खुदा मिल गया तो क्या खोया, और अगर सब कुछ मिल जाए मगर रजाए इलाही हासिल ना हो तो क्या पाया? ये मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में से आपके पास सब कुछ हो मगर खुदा ना हो तो क्या फायदा है? हदफ क्या है? इमाम जिंदगी का मरकज, इमाम की जिंदगी का सेंटर, इमाम की जिंदगी का पिलर इमाम बता रहे हैं कि क्या है इमाम की जिंदगी का मरकज? अल्लाह की रजा। और यकीनन जब ये बंदे अल्लाह, खास खुसूसी अब्दे अल्लाह इमाम हुसैन अपनी जिंदगी का मरकज खुदा को बना रहे हैं, तो खुदा भी सदा देता है कि या अय्यतुहल नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिक राज़ियतम मर्जिया, कि ए नफ्से मुतमइन्ना पलट आ, कि तेरा रब तुझसे राजी है और तू भी अपने रब से राजी हो जा। अल्लाह अकबर। हम अपने रब से राजी हो जाए ये एक बात है,
मगर खुदा कहे कि मैं तुझसे राजी हो गया। क्या क्या बेहतरीन एंड है ये जिंदगी का। कि सोचे कि अगर हम जब इस दुनिया से जाए और हमारा रब हमसे कहे कि मैं तुझसे राजी हो गया, व्हाट काउंट्स आफ्टर दैट? उसके बाद उससे बड़ी और उरूज जीत क्या होगी? उससे बेहतर कामयाबी और क्या होगी? तो हम दुआ करते हैं कि ए खुदा, तुझे वास्ता इमाम हुसैन के इस अपने वतन को छोड़ने का, तेरे दीन को बचाने के लिए, कि ए खुदा हमारी जिंदगियों का एंड भी ऐसा हो कि जब तू हमसे राजी हो जाए। इस दुआ की कबूलियत के लिए एक मरतबा दुरूद पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहू। एक आलिम बयान करते हैं कि वाकई करबला, मदीने को छोड़ने से लेकर वो आखिरी सजदा जो इमाम हुसैन ने किया, ये जो मुकम्मल स्टोरी है, ये एक बेहतरीन लव स्टोरी है। हम जब बात आती है लव स्टोरी की तो हमारा जहन सिर्फ एक तरफ जाता है कि एक मेल या एक फीमेल या एक कपल की स्टोरी हो। नहीं अजीजा ने मोहतरम, इश्क की कई मिसालें हैं। और उरफा और उलमा ये कहते हैं कि ये वाकई करबला बेमिसाल इश्क की कहानी। किसके इश्क की? अब्द और माबूद के इश्क की। क्रिएटर और क्रिएशन, बेस्ट ऑफ क्रिएशन इमाम हुसैन और उनके रब के इश्क की कहानी है। कि कैसा इश्क, व्हाट इज द हाइट ऑफ द लव ऑफ इमाम हुसैन। के इमाम कहते हैं कि घर चाहिए दीन खुदा को तो मेरा घर हाजिर है, औलाद का खून चाहिए तो मेरी औलाद का खून हाजिर है, अगर दीन इस्लाम के बच जाने के लिए मेरी नामूस पे जुल्म होता है वो भी हाजिर है। हर चीज अता करने के लिए तैयार है इश्क इलाही में। क्या है इश्क इलाही? ये कैसा इश्क था इमाम हुसैन के कल्ब में खुदा का, खुदा की रजायत का, अल्लाह के राजी हो जाने का। कैसा इश्क था कि जिसके लिए सारे कॉम्प्रोमाइजेस इमाम हुसैन के लिए आसान है। और कैसा इश्क था बीबी जैनब के कल्ब में, कि बीबी जब अपने घर को लुटा आई है, जब अपने भाई को कत्ल होता देख कर आई है, जब अपने सरों से चादरों को छिनवा कर आई है, और फिर जब यजीद सवाल करता है कि देखा जैनब नौजुबिल्ला कि तुम्हारे खुदा ने क्या किया, तो बीबी फरमाती है माँ रई तो इल्ला जमीला, कि मैंने अपने रब की तरफ से जमाल के अलावा कुछ नहीं देखा। क्या ऐसा ड्राइविंग फैक्टर है कि जिसके वजह से कोई गम गम नहीं लगता है, कोई सैक्रिफाइस बड़ा नहीं लगता है? कि ऐसा इश्क कि खुदा राजी होता है तो सब कुछ मंजूर है। क्या है ये इश्क हकीकी? अजीजा ने मोहतरम, क्यों इतना जरूरी है कि हम अल्लाह से मोहब्बत करें? क्यों इतना जरूरी है कि हमारे दिलों में अल्लाह की उनसियत मौजूद हो? क्या क्या हमारी मोहब्बत अल्लाह है? क्या हमारी जिंदगी का मरकज खुदा है? नहीं। हमारी मोहब्बत किससे है? हमारी जिंदगी का मरकज क्या है? हमारी जिंदगी का सेंटर ऑफ अटेंशन क्या है? मादियत, दुनिया, वर्ल्ड एंड वर्ल्डली अफेयर्स। हमारे कल्ब में किसकी मोहब्बत है? गैरे खुदा की मोहब्बत है। अच्छा, क्या क्या हम सब ने इस बात पे फोकस किया? क्या हम सब ने ये सवाल अपने आप से पूछा कि क्या इमाम के सफर पर निकलने की खुदा के अलावा कोई और वजह थी? कोई भी वजह थी? नहीं। वाहिद वजह इमाम के इस अजीम कुर्बानी की खुदा है। यानी इससे हम ये समझते हैं कि जैसे कि इमाम अली की हदीस है कि इंसान का नफ्स इतना ज्यादा वैल्यूएबल है कि उसकी कीमत खुदा से कम कुछ नहीं होनी चाहिए। अजीजा ने मोहतरम, हम अपने नफ्स को किस चीज के लिए बेच देते हैं? छोटी छोटी चीजों के लिए, दुनिया की चीजों के लिए। और कैसी चीजों के लिए? कि जिसका इनफाइनाइट होना भी यकीनन नहीं है। फाइनाइट चीजों के लिए, कि जो पता है कि आज है और कल फना हो जाएगी।
इमाम अली क्या फरमाते हैं कि तुम्हारा नफ्स इतना ज्यादा कीमती है कि उसकी कीमत गैर खुदा नहीं होनी चाहिए, बगैर अलावा खुदा के कुछ और नहीं होनी चाहिए। इमाम हुसैन ने अपने नफ्स की कीमत क्या लगाई है? खुदा की रजा, कि अल्लाह राजी हो जाए, कि वो नफ्से मुतमइन्ना की लेवल पर पहुंच जाए। आज हम उसी इमाम की मजलिस करने के लिए जमा हुए हैं। तो क्या आज हम यहाँ इस मजलिस में ये अहद करते हैं इमाम से कि इमाम आपने अल्लाह की रजा के लिए सब कुछ छोड़ दिया, हम भी अल्लाह की रजा के लिए अपनी जिंदगी से कोई एक चीज को तर्क करेंगे, एक बुरी चीज को तर्क करेंगे, या हम गॉसिप करना तर्क कर देंगे, या हम गीबत करना तर्क कर देंगे, या हम झूठ बोलना तर्क कर देंगे। देखें, उलमा बयान करते हैं कि तुम अगर देखना चाहो कि तुम्हारा कोई भी अमल कबूल हुआ है या नहीं, तो ये देखो कि उस अमल के अंजाम देने के बाद तुम में कोई तब्दीली आई है या नहीं आई। अगर तुम में कोई तब्दीली नहीं आई, यू आर एज यू आर, तो तुम्हारा अमल लायक कबूलियत तक नहीं पहुंचा शायद। जैसे कि अगर आप जियारत से आओ तो देखो कि क्या मेरे अंदर कोई तब्दीली आई है। तो जैसे आप आज इस मजलिस में जमा हुए हैं, तो अगर आप देखना चाहते हैं कि क्या आपका इस मजलिस में आना कबूल हुआ, तो देखें कि क्या यहाँ से इस फर्श से उठकर जाने के बाद आप में कोई चेंज आया। तो आज हम इमाम हुसैन से अहद करते हैं कि मौला आपने ये दीन हम तक पहुंच जाए इसलिए सब कुछ छोड़ दिया। तो आज हम आपकी मजलिस में अहद करते हैं कि हम अपने नफ्स की बुराई में से एक बुराई को खुदा के लिए छोड़ देंगे। इस अहद की कबूलियत के लिए बाबा से बड़ा सवाल। मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल फरज। पलट कर आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि क्या है इश्क इलाही, खुदा से इश्क क्या है। अच्छा, इश्क की मेजरमेंट कैसे होती है? व्हाट इज द मेजर ऑफ लव? क्या किलोमीटर्स में, मीटर्स में, लीटर्स में, सेंटीमीटर्स में लव को मेजर किया जा सकता है? नहीं। साइकोलॉजी के हिसाब से प्यार का मेजर या स्केल टू नो द इंटेंसिटी ऑफ लव इज डेस्परेशन। आप किस चीज के लिए कितने डेस्परेट हो, ये बताता है कि आप उस चीज से कितनी मोहब्बत करते हो, कितनी आपके दिल में तड़प है एक चीज को लेकर, ये बताती है कि आप उससे कितनी मोहब्बत करते हैं। अच्छा, हमारे दिल में खुदा के लिए कितना डेस्परेशन है, कितनी तड़प है अपने रब के लिए। मैं आपको एक वाकया सुनाऊं। आयतुल्लाह काजी रिजवानुल्लाह ताला के बेटे फरमाते हैं कि मेरे बाबा का जब आखिरी वक्त था, तो मेरे बाबा बहुत ज्यादा शिद्दत से अतश अतश ये जुमले अदा करते थे। अतश यानी प्यास। तो हम अपने बाबा को पानी दिया करते थे, शरबत दिया करते थे, बहुत सारे लिक्विड्स अपने बाबा को देते थे कि उनकी प्यास बुझ जाए, मगर उनकी प्यास बुझा नहीं करती थी और वो अतश अतश की कंप्लेन किया करते थे। और मेरे बाबा मुझसे कहते थे कि ये अतश तब बुझेगी जब मैं अपने माबूद से मुलाकात करूंगा। लका अल्लाह की मोहब्बत, लका अल्लाह की ये अतश है। और वो फरमाते हैं कि आखिरी वक्त में मेरे बाबा का सीना सियाह हो गया था। किस अतश में, किस तड़प में? अपने रब से मुलाकात की अतश में, अपने रब से मुलाकात की तड़प में। अजीजा ने मोहतरम, क्या हमारे अंदर ऐसी अतश पाई जाती है? क्या हम अपने रब को इस तरह से याद करते हैं? जब हम अपने रब को याद करते हैं, वो 5 टाइम्स प्रेयर्स जो कि वाजिब है, उलमा कहते हैं कि हमारी उम्मत का इतना बुरा हाल है कि अगर ये अल्लाह ने वाजिब ना रखा होता तो कितने लोग, अगर ये वॉलेंट्रीली होता तो कितने लोग शायद कई दिनों तक अल्लाह को याद भी ना करते। क्योंकि वाजिब है इसलिए 5 टाइम मुसलमान मुसल्ले पे तो आ जाता है, मगर क्या हमारी नमाज मेराज है? अच्छा, एक क्विक एक्सरसाइज हर एक अपने लिए कर सकता है। क्या कभी हमें ऐसा होता है कि मगरिब में कुछ टाइम बाकी है, कुछ टाइम बाकी है, जल्दी ये वक्त बीत जाओ, जल्दी मैं अपने रब से गुफ्तगू करने के लिए मुसल्ले पे आ जाऊं? क्या कभी हमें वो लॉन्गिंगनेस फील होती है
ये एक सेल्फ एक्सरसाइज है कि हर कोई करे कि हम अपने खुदा को कितना मिस करते हैं, हम अपने रब को कितना, अपनी जिंदगी में डेस्परेशन है हमारी लाइफ में अपने खुदा के लिए। अच्छा, क्या है डेस्परेशन अल्लाह के लिए? क्या है अल्लाह को अपनी जिंदगी का मरकज बनाना? व्हाट डज दैट मीन? क्या हम, जैसे कि गैर कौमों में होता है कि जैसे वो संन्यास ले ले, दुनिया को छोड़ दे और कहीं एक पहाड़ी पे चले जाए, क्या इस्लाम हमें ये कहता है? क्या इस्लाम और खुदा हमसे ये सवाल करता है? नहीं। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि बिल्कुल दुनिया को छोड़ दो, वर्ल्डली लाइफ को छोड़ दो और सिर्फ खुदा खुदा करने के लिए किसी पहाड़ी पर चले जाओ। नहीं, इतना शीरीन, इतना इतना अजीम दीन है हमारा कि हमें खुदा कहता है कि दुनिया में भी रहो, मेरी दी हुई नेमतों का इस्तेफादा भी करो। ऐसा नहीं है कि खुदा कह रहा है कि कंप्लीट वर्ल्डली लाइफ से अपने आप को कट ऑफ कर दो। नहीं, खुदा कह रहा है यूज, अगर अल्लाह ने आपको अता किया है, इमाम फरमाते हैं कि अपनी हैसियत के मुताबिक जिंदगी गुजारो, अपनी स्टेटस को मेंटेन करो। अल्लाह ने तुम्हें दिया है तो बेहतरीन गिजा खाओ, बेहतरीन कपड़े को पहनो, बेहतरीन सवारी का इस्तेमाल करो। ये नहीं है मरकज को खुदा बनाना कि सब कुछ छोड़ दे। नहीं, जिंदगी का मरकज खुदा बनाने का मतलब ये है कि हम अपनी नियतों में खुदा को शामिल करें। मैं खाना खा रही हूँ तो इस नीयत से खाऊं कि अल्लाह मैं ये गिजा को तनावुल फरमाती हूँ ताकि इससे जो कुव्वत हासिल हो मैं तेरी इबादत कर सकूं। कितना इजी है, कितना सिंपल है। अल्लाह ने कितना सिंपलीफाई कर दिया है हमारे लिए हर चीज को। हर एक काम इस नियत से करे कि खुदा बस तू राजी हो जाए, फिर कोई मुश्किल मुश्किल लगेगी ही नहीं। देखिए, क्या होता है बाज दफा कि हम कुछ काम करते हैं और उसका मुआवजा एक्सपेक्ट करते हैं, और जब एज एक्सपेक्टेड हमें नहीं मिलता है तो हमारा दिल टूट जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आज घर में बहुत सारा काम किया, सुबह उठकर ब्रेकफास्ट बनाया, फिर क्लीनिंग की, डस्टिंग की, वटेवर, पूरा दिन मैंने काम किया। अब मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मेरे हस्बैंड घर आएंगे, फिर मुझे प्रेज करेंगे, ओ माशाल्लाह घर कितना क्लीन है, द फूड वाज टेस्टी। और फॉर इंस्टेंस, अगर आज मेरे हस्बैंड ही हैड अ बैड डे एट वर्क और उनका मूड नहीं है और उन्होंने मुझे प्रेज नहीं किया, फिर क्या होगा? हाँ, माई एफर्ट्स आर नेवर सीन। क्यों? क्योंकि हमने उसका रिटर्न एक्सपेक्ट किया था बंदे से। अगर यही काम मैं इस नियत से करूं कि ए खुदा मैं अपने घर में खाना बना रही हूं ताकि मेरे घर वाले एक अच्छी गिजा को खाए, उनमें कुव्वत पैदा हो ताकि वो तेरी इबादत करे, कित नियत का सवाब भी मिल गया। और क्योंकि किसी और से ये रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं किया था, जब एक्सपेक्टेशन नहीं टूटेगी तो बुरा भी नहीं लगेगा। फिर अगर विदाउट एक्सपेक्टेशंस कोई प्रेस करे तो नूरुल अला नूर है। यानी ये सिर्फ टू लाइटन द मूड कि हर काम की नियत खुदा को बना ले। हर चीज, खुदा मैं उठ रही हूँ फी सबीलिल्लाह, खुदा मैं बैठ रही हूँ फी सबीलिल्लाह, खुदा मैं घर में काम कर रही हूँ फी सबीलिल्लाह, खुदा मैंने किसी के साथ नेकी की है तेरे लिए। हर काम में खुदा से कहे खुदा ये कर रही हूँ बस तू राजी हो जा, खुदा मैं ये अमल अंजाम दे रही हूँ बस तू राजी हो जा। हर एक काम इबादत में शुमार हो जाएगा आपका। आपका अपने घर में कुकिंग करना भी इबादत में शुमार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह के लिए किया है। एवरीथिंग यू डू फॉर द सेक ऑफ अल्लाह इज इबादत। और हमारी जिंदगी का मकसद ही इबादत है। क्या फरमाता है खुदा कुरान में? वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, कि हमने इंसानों और जन्नात को खल्क ही नहीं किया सिवाय इसके कि वो मेरी इबादत करे। तो व्हाट डज अल्लाह मीन बाय दिस? ये नहीं अल्लाह मीन कर रहा है कि आप सब कुछ छोड़ दे और सिर्फ मुसल्ले पे बैठ जाए, ना ना ना। अल्लाह मीन करता है कि आप अपने हर काम को सिद्के नियत में डाल दे। हर काम, अगर जेंट्स ऑफिस भी जा रहे हैं तो ये नियत से कि खुदा मैं रिस्के हलाल कमा रहा हूँ ताकि मैं अपने घर वालों को हलाल रोजी से पाल सकूं। तो हर चीज व्हेन टर्न्ड इनटू फी सबीलिल्लाह इबादत में शुमार कर देता है अल्लाह। अच्छा, फिर पलटते अपने टॉपिक की तरफ कि क्यों जरूरी है कि हम अल्लाह को अपनी जिंदगी का मरकज बनाएं। क्यों जरूरी है कि हमारी जिंदगी का हदफ, हमारा गोल, द इटर्नल एम
अलमाइटी अल्लाह को बनाए? क्यों जरूरी है? क्या होगा अगर हम अपनी जिंदगी का हदफ दुनिया को बना दें? क्या होगा? अच्छा, लेट्स प्रूव दिस विद साइंस। साइकोलॉजी में और इकोनॉमिक्स में एक थ्योरी है जिसे कहा जाता है थ्योरी मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड। यू कैन गूगल इट, आप सब इसे गूगल कर सकते हैं। मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड क्या है? एक इकोनॉमिस्ट था रॉबिन मैस्लो, उसने एक पिरामिड को बनाया, एक ट्रायंगल, और उसमें उसने इंसान की नीड्स के स्टेप्स बनाए हैं। उसने इंसान की नीड्स को 5 स्टेप्स में अ, अ, एक चार्ट बनाया, एक ट्री बनाया, नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। फर्स्ट नीड, सबसे पहले, जब इंसान के पास कुछ नहीं होता, स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जीरो, तो इंसान ये चाहता है कि उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाए, जैसे कि खाना, कपड़े, पानी, बेसिक नीड्स, फूड, वाटर एंड शेल्टर, फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग। फिर जब उसकी वो नीड्स पूरी हो जाती है, जब उसके पास अच्छा खाने को है, एक डिसेंट घर रहने के लिए है, एक डिसेंट कपड़ा पहनने के लिए है, फिर उसकी नीड्स बढ़ जाती है। अब वो आ जाता है सिक्योरिटी नीड्स पे। अब वो चाहता है कि मेरे पास एक सिक्योर फ्यूचर हो, एक सिक्योर घर हो, एक सेफ एनवायरनमेंट हो। फिर जब वो उसको अक्वायर कर लेता है, तो वो जाता है सोशल नीड्स पे। अब वो चाहता है कि माशरे में मेरी इज्जत हो। अब वो चाहता है कि जब सोसाइटी में मैं जाऊं तो मेरा एक अच्छा सर्कल हो, मेरा एक स्टेटस हो। फिर जब ये पूरा हो जाता है, तो उसकी नीड्स बढ़ जाती है एस्टीम नीड्स। अब ये पॉइंट आ जाता है कि वो चाहता है कि लोग उसे एक अच्छी शख्सियत के हिसाब से देखे, बेहतरीन घर। अब तक ये था कि डिसेंट घर हो, डिसेंट लाइफस्टाइल हो, नहीं, अब ये लग्जरी पे आ जाता है कि अब मेरे पास दुनिया की बेस्ट गाड़ी हो, दुनिया का बेस्ट लिबास हो, सबसे बेस्ट एरिया में घर मेरा हो। एस्टीम पे बात आ जाती है, सेल्फ एस्टीम। अच्छा, अब उसके बाद क्या? व्हाट आफ्टर दैट? तो मैस्लो ये कहता है कि एक पॉइंट इंसान की लाइफ में ऐसा आता है, जब, क्योंकि एज भी बढ़ती जाती है इसके साथ, तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब वो सोचता है कि अब सब कुछ तो पा लिया मैंने। देखें, चीजें आ जाने से सेटिस्फैक्शन नहीं आता है। एक कोट है कि देर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर अ सिंगल्स ग्रीड। नीड्स खत्म हो सकती है, मगर ग्रीड, लालच का कोई एंड नहीं है। ये थियोरी पे आते हैं कि जब कुछ नहीं था तो वो चाहता था कि बेसिक कपड़े हो जाए, बेसिक घर हो जाए, बेसिक फूड मिल जाए। फिर थोड़ा ऊपर 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 एक पॉइंट उसकी लाइफ में, हर इंसान की लाइफ में एक पॉइंट ऐसा आता है जब वो पीक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर पहुंच जाता है। अब वो सोचता है कि मैं बेहतरीन लिबास पहन रहा हूँ, बेहतरीन गिजा को खा रहा हूँ, बेहतरीन घर में रह रहा हूँ, सबसे बेस्ट मेरे पास मौजूद है, मगर फिर भी ये नफ्स सेटिस्फाइड नहीं फील करता। क्यों? वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे आ जाता है कि हकीकत क्या है, क्यों ये सब कुछ होने के बाद भी मैं सेटिस्फाइड फील क्यों नहीं कर पा रहा हूं। तो इसी थियोरी के ऊपर आइए अब इसको कनेक्ट करते हैं दीन इस्लाम से, कि एक ओलेमा फरमाते हैं कि इंसान का जो नफ्स है, इंसान की जो रूह है, वो इनफाइनाइट है। प्लीज मेरे साथ आप इस टॉपिक को बहुत गहराई से सुनिए, क्योंकि मैं आप तक एक बहुत डीप मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ। इंसान की जो रूह है वो इनफाइनाइट है, लामहदूद है, जिसका कोई एंड नहीं है। और ये दुनिया जो वाकईन बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा बड़ी है, मगर फिर भी ये फाइनाइट है। गेटिंग इट? दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा बड़ी है, मगर फिर भी इसका एक एंड तो है। हम जानते हैं, एक एक ग्लोब, दुनिया बहुत बड़ी है, मगर वी हैव पुट इट ऑन अ ग्लोब ना, वी नो कि इसकी कुछ हद है। दुनिया जितनी भी बड़ी हो, वो एक फाइनाइट शय है। अब इस पर गौर करें। वो आलिम दीन फरमाते हैं कि एक लामहदूद कभी भी एक महदूद से सेटिस्फाई नहीं हो सकता। आलिम दीन फरमाते हैं कि
इट इज नॉट पॉसिबल कि एक इनफाइनाइट शय को एक फाइनाइट शय सेटिस्फाई कर दे। तो वो आलिम दीन फरमाते हैं कि इसीलिए ये नामुमकिन है कि ये दुनिया, पूरी दुनिया मिलकर भी एक रूह को सेटिस्फाई कर पाए, क्योंकि वो फाइनाइट है। इंसान को जो कुछ मिलता जाएगा, ही विल ऑलवेज हैव एन अबव थिंग टू लुक एट कि अच्छा ये मिल गया, अब ये, अब ये, अब ये। मगर इस रेस ऑफ लाइफ में एक पॉइंट ऐसा आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का, कि जहां इंसान थक जाता है कि चाहे जो कुछ कर लो, इसके ऊपर कुछ है, इसके ऊपर कुछ है। तब वो रियलाइज करता है कि एक फाइनाइट शय को सिर्फ एक इनफाइनाइट शय को सिर्फ एक इनफाइनाइट शय ही सेटिस्फाई कर सकती है। और उलेमा फरमाते हैं कि दुनिया में सब कुछ फानी है, सिर्फ एक चीज जो ला फानी है और ला महदूद है और इनफाइनाइट है, वो इश्क खुदावंदा है, वो अल्लाह की जात है। यानी कि जब तक इंसान इस दुनिया के पीछे भागता रहेगा, इट इज लाइक रनिंग ऑन अ ट्रेडमिल, कि यू आर रनिंग बट रीचिंग नोवेयर। तो अल्लाह से मोहब्बत, जब इंसान अल्लाह को अपनी जिंदगी का मरकज बना लेता है, तब वो एक्चुअल सुकून को अपनी जिंदगी में महसूस कर सकता है। इसकी एक मिसाल जो मैं नहीं दे रही हूँ, उलेमा और औरफा ये मिसाल देते हैं कि क्योंकि हिस्ट्री में लैला और मजनू के स्टोरी को बताया जाता है मिसाल देने के लिए। तो जब लैला का आखिरी वक्त था, शी वॉज ऑन द डेथ बेड, तो मजनू उससे मुलाकात के लिए आता है और मजनू उससे कहता है कि लैला, मैंने तो अपनी जिंदगी का मरकज तुम्हें बना दिया था, यू वर द सोल सेंटर ऑफ माई लाइफ। मेरी जिंदगी में मैंने तुम्हारे अलावा कुछ और इमेजिन ही नहीं किया, ना कुछ सोचा, ना कुछ किया। अब तुम इस दुनिया से जा रही हो, तो अब आई एम अनेबल टू थिंक कि इसके अलावा मैं क्या करूंगी। हमारे साथ भी जिंदगी में ये होता है ना, कि हम सोचते हैं कि इसके बगैर तो गुजारा मुमकिन ही नहीं है, ऐसा हो गया तो हम क्या करेंगे। क्योंकि हमने अपने आप को ऐसी चीजों पे डिपेंडेंट बना दिया है जिनका कोई भरोसा नहीं है। सोचे कि अगर हमारा नफ्स ऐसा बन जाए कि जो जाना हो चला जाए, खुदा तो है। किसी ने एक आलिम दीन से सवाल किया कि क्या आपको कल की फिक्र नहीं होती। तो वो आलिम दीन जनाब अबूजर का किस्सा बयान करते हैं कि क्या था जनाब अबूजर का किस्सा। जनाब अबूजर को जब अपने वतन से निकाल दिया गया, तो उनको कोई मालो जर या कोई दौलत देकर नहीं भेजा गया था। एज जैसे वो जिस हालत में थे, उस हालत में उन्हें जलावतन कर दिया गया था। तो उनके पास फकत दो रोटियां थी। तो उनके पास एक फकीर आकर सवाल करता है कि मुझे कुछ आप दे दीजिए। अली के नौकर ऐसे होते हैं कि दो रोटियां उसको दे दी। अब जो जनाब अबूजर के एक साथी थे, वो सवाल करते कि अबूजर, ये तुमने क्या किया। ना तुम अपने वतन में हो, ना तुम्हारे पास कोई मालो दौलत है, दो रोटियों का आसरा था, तुमने वो भी दे दिया। पता है अबूजर क्या जवाब देते हैं। अबूजर कहते हैं कि सुबह की रोटी मैं खा चुका हूँ, अभी मेरा शिकम सैर है, और जिस खुदा ने सुबह की रोटी का इंतजाम किया था, रात की रोटी का मालिक भी वही है। हम हम चाहते हैं कि सब कुछ जमा कर ले, सबसे सिक्योर फ्यूचर अपना बना ले। कमिंग टू द पॉइंट, जब लैला का आखिरी वक्त है, तो मजनू कहता है कि अब मैं अपनी लाइफ तुम्हारे बगैर इमेजिन ही नहीं कर सकता। पता है लैला क्या जवाब देती है। लैला मजनू से कहती है कि मजनू, तुमने मुझसे इतनी मोहब्बत की, मगर अब मैं फना हो जाऊंगी, यानी तुम्हारी मोहब्बत फना हो जाएगी। मेरे बाद किसी ऐसी चीज से दिल ना लगाना जो फानी हो। मेरे बाद सिर्फ उस शय से मोहब्बत करना जो ला फानी हो, ताकि उसके जुदा हो जाने का गम तुम्हारे दिल को ना लगे। ये जवाब मिलता है। हम अपना दिल कितनी चीजों से लगा लेते हैं। अच्छा, हमने अपना दिल खुदा से कितना लगाया है। क्या देते हैं हम खुदा को। खुदा तो हमें बहुत कुछ देता है। एक दुरूद पढ़े, मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहम। के शायर ये लिखता है
ये सुबह, ये शामें, ये दिन और रात, ये रंगीन दिलकश हंसी कायनात, ये हूरो मलाइक व जिन्नात में किया है तुझे अशरफुल मखलूकात। मेरी अजमतों का हवाला है तू रोशनी है उजाला है तू। फरिश्तों से सजदा भी तुझे करवा दिया, तेरे लिए मैंने क्या क्या ना किया। ये दुनिया जहां की बज़्म आराइया, ये महफिल, ये मेले, ये तन्हाइयाँ, फलक का तुझे शामियाना दिया, जमीन पर तुझे आबोदाना दिया। मिले अबशारों में भी हौसले, पहाड़ों में तुझको दे दिए रास्ते। ये पानी हवा, ये शम्सो कमर, ये मौजे रवानी, ये किनारा, ये भंवर, ये शाखों पे गुंछे चटकते हुए, ये फलक पे सितारे चमकते हुए, ये सब्जे, ये फूलों भरी क्यारियां, ये पंछी, ये उड़ती हुई तितलियां, ये शोला, ये शबनम, ये मिट्टी, ये संग, ये झरनों में बजते हुए जल तरंग, ये झीलों में हंसते हुए से कवल, ये धरती पे मौसम की लिखी हुई गजल, ये सर्दी, ये गर्मी, ये बारिश, ये धूप, ये चेहरा, ये कद, ये रंग और ये रूप, दरिंदों चरिंदों पे काबू दिया, तुझे देकर ये भाई बाजू दिया, बहन दी तुझे शरीके सफर, ये रिश्ते, ये नाते, ये घराने, ये घर, ये अक्लो जहानत, शऊर और नजर, ये बस्ती, ये सहरा, ये खुशकी, ये तर, और इस पर किताबे हिदायत भी दी, नबी भी उतारे, शरीयत भी दी। गरज के बनाया सब कुछ मैंने तेरे लिए, गरज के बनाया सब कुछ मैंने तेरे लिए, ए मेरे अब्द बता क्या किया तूने मेरे लिए। अजीजा ने मोहतरम, क्या जवाब रखते हैं हम इसका कि हमने खुदा के लिए क्या किया। अगर हमसे कल सवाल हो कि तुमने अपनी जिंदगी में खुदा के लिए क्या किया, तो क्या हमारे पास इसका एक अच्छा जवाब है जो हम अल्लाह की बारगाह में दे पाए। हर एक को चाहिए कि अपने दिन में, मुकम्मल दिन में, एक काम ऐसा करे जो अल्लाह को हदिया करे। अगर कोई इंसान किसी को कोई गिफ्ट भेजे, तो क्या तो क्या ऐसा है कि वो उसे रख लेगा? नहीं। ऑब्वियसली ये सोसाइटल नॉर्म है, सोशल बिहेवियर में से है कि वो उसे रिटर्न गिफ्ट देगा, राइट। तो सोचे कि जब हम अल्लाह को कोई तोहफा दे और वो हमें रिटर्न गिफ्ट भेजे, फिर हमारी जिंदगी में किस बात की कमी होगी कि कोई एक काम पूरे दिन में ऐसा करे और खुदा से कहे कि ए मेरे खुदा, ये तेरे लिए बस ये काम किया है कि बस तू राजी हो जा। किसी से दिल में शिकवा है, उससे दूर कर दे और खुदा से कहे कि खुदा मैं सिला रहमी का हाथ बढ़ा रही हूँ ताकि तू राजी हो जा। किसी का कोई काम अटका हुआ है, वो करवा दे और कहे कि खुदा ये काम इसलिए कि तू राजी हो जा। कोई एक काम ऐसा करे जिसमें कोई रियाकारी शामिल ना हो और कहो कि ए खुदा, ये काम सिर्फ इसलिए कि तू राजी हो जा। ये दर्स, सबसे पहला दर्स है करबला का, क्योंकि आज इब्तिदा है करबला की। आज सफर करबला शुरू हुआ है और इस सफर की शुरुआत इस दर्स से हुई है कि सब कुछ छोड़ दो अल्लाह के लिए। इमाम हुसैन ने अपना सब कुछ छोड़ दिया अल्लाह की रजा के लिए। कैसा छोड़ा है कि नाना का वतन भी छोड़ा है, माँ के मजार को भी छोड़ा है। जब 25 रजब को ये हुक्म आया है ना कि अगर बैयत ना कर सको तो मदीने से चले जाओ, कितना मुश्किल रहा होगा इमाम हुसैन के लिए। 25 को ये हुक्म आया, इमाम ने 2 रातें गुजारी है उसके बाद मदीने में। एक रात नाना के रोजे पे गुजारी है और एक रात माँ के मजार पे गुजारी है। नाना के रोजे पर गए हैं और अपने चेहरे को नाना की लहद पे रख दिया। नाना मदीना रहने के काबिल ना रहा, नाना हुसैन जा रहा है, नाना वादे तिफली को पूरा करने का वक्त आ गया, माँ की मजार पर गए हैं। लिखने वाले ने लिखा है कि हुसैन नाना के मजार पे कदम जमा जमा के गए हैं, लेकिन जब माँ की मजार पे आए हैं तो घुटनियों चल के ऐसे आए हैं जैसे 6 माह का बच्चा अपनी माँ की आगोश में आता है। हुसैन माँ की लहद से लिपटे कहते हैं, अम्मा हुसैन के जाने का वक्त करीब है।
अम्मा हुसैन को तन्हा ना छोड़ना, लहद को छोड़ो, हुसैन के साथ सफर करो। हुसैन आए हैं जैनब के पास, ए बहन जैनब, मदीना की गलियां हमारे लिए तंग हो गई है जैनब, वक्त आ गया है कि हम अपने सफर का आगाज करें। जैनब ने अब्दुल्ला से इजाजत ली। अब एक फहरिस्त बनाई गई जिसमें हर एक का नाम है। अकबर का भी नाम है, अब्बास का भी नाम है, नन्हे अली असगर तक का नाम है। अगर कोई नाम नहीं है तो बस एक सुगरा बिनते हुसैन का नाम नहीं है। सुगरा अपने उजरे में देख रही है, माए सफर का सामान बांधती है, फुफिया सफर का सामान तय करती है, भाई सफर के लिए असबाब मुहैया करते हैं। सुगरा जाती है, चची फरमा सुगरा को भी ले चलो। चची मुंह को फेर लेती है, माँ के पास जाती है, अम्मा लैला सुगरा को भी ले चलो। फूफी जैनब के पास जाती है, फूफी सुगरा को भी ले चलो। आखिर अपने बाबा के पास पहुंची है, कहती है बाबा सुगरा सफर में बीमारी की शिकायत करेगी, सुगरा कनीजों की आबादी में चलो। जैनब आई है और भाई से कहती है, भाई क्या वजह है कि सुगरा नहीं चल सकती। मेरे मौला की आंखों में शाम का वो मंजर आया, कहते हैं बहन जैनब, हमारे मगर शाम में बीवियों को बेरहम होगा। मेरी दुख्तर सुगरा मेरी की शबी है। हुसैन सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है मगर ये बर्दाश्त नहीं की जाए। बरस के काफिला तैयार हुआ, बीबियों को सवारी में सवार करने का मौका आया। अल्लाह अकबर, क्या शान है कारवाने हुसैन की, कि अब्बास मीरे कारवा है। हर एक बीबी आती है, लैला आई है, अकबर ने बढ़ के सवार किया। हमारियों में पर्दे का मुकम्मल एहतमाम। रबाब आगे आई है, इमाम ने सवार किया। हर एक बीबी आती गई और हर एक महरम जवान सवार करता गया। अब एक वक्त आया कि अम्मा ने सुना कि अहले मदीना एक बनी हाशिम का हल्का बन दिया गया। जैनब आगे बढ़ी है, अब्बास ने अपने जानू को रखा, भाई ने हाथों को संभाला, अकबर ने चादर को संभाला और जैनब सवार हुई है। एक याद आती है उस शाम गरीबा की, उस 11 मुहर्रम की, कि जब यही जैनब है, हाथ पसे पुश्त बंधे हैं, सरों पे चादर नहीं है। को सवार करने वाला कोई नहीं। अना लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन, रज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन बिअम्रिही। ऐ मेरे खुदा, तुझे वास्ता इमाम हुसैन के इस सफर का। ऐ मेरे खुदा, तुझे वास्ता है आंखों में से बहने वाले अश्कों का। ऐ खुदा, तुझे वास्ता है तमाम हाज़िरान मजलिस के अकीदत का। ऐ मेरे खुदा, मकतूल करबला का बदला लेने के लिए वारिस करबला के ज़ुहूर में ताजील फरमा। ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, हमें बेहतरीन तौफीक अता करके हम अपनी जिंदगियों का मरकज तुझे बना सके। ऐ मेरे खुदा, हमें तौफीक दे कि हम अपनी जिंदगी के हर काम को तेरी तरफ मोड़ सके। ऐ मेरे खुदा, तू वैसा है जैसा हम चाहते हैं, हमें वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। ऐ मेरे खुदा, तुझे वास्ता 4 रोज के उस कमसिन असगर का जिसका सफर आज शुरू हुआ। ऐ मेरे खुदा, हर एक बे औलाद को औलाद अता फरमा, साहिबाने औलाद की औलाद को सलामत रख। तुझे वास्ता कासिम और अकबर का। ऐ मेरे खुदा, जो जो भी शादी के लिए जोड़े तलाश करते हैं उन्हें बेहतरीन जोड़े अता फरमा।
ए मेरे खुदा तुझे वास्ता हजरत अब्बास का, हमारे बुजुर्गों का साया हमारे सरों पर सलामत रख। ए मेरे खुदा तुझे वास्ता है बीबी जैनब का, बीबी रबाब का, बीबी लैला का, हमारे कौम की हर एक बहनों को बेहतरीन पैदा करने की तौफीक अता फरमा। ए मेरे खुदा हमसे इस मजलिस को कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहम। गम मदीने वालों को ये सदा रुलाएगा, ये सदा रुलाएगा। हाय चैन सुगरा को किस तरह से आएगा, किस तरह से आएगा। काफिला शहीदी का लौट के कब आएगा, लौट के कब आएगा। गम मदीने वालों को ये सदा रुलाएगा, ये सदा रुलाएगा। छोड़ के चले शबीलो नबी के मरकज को, आखिरी किया उजरात, रोके आपने जद को। शम्माज तुरबत पर कौन अब जलाएगा। कम मदीने वालों को ये सदा रुलाएगा, ये सदा रुलाएगा। काफिला शहीदी का लौट के कब आएगा, लौट के कब आएगा। हो चुके हैं शाहरुख साथ इस घड़ी बरादर से, इज़्न लेके है मौला रोके अपनी मादर से। हाय सदा ये ज़हरा की चैन कैसे आएगा, चैन कैसे आएगा। हम मदीने वालों को ये सदा रुलाएगा, ये सदा रुलाएगा। दूर का सफर ये है, साथ में है हमराही, माँ के बदले ज़ैनब है, बाप के वज़ भाई। छुटता है वतन है क्या फलक दिखाएगा, क्या फलक दिखाएगा। गम मदीने वालों को ये सदा रुलाएगा, ये सदा रुलाएगा। शान है अजब इस दम सात शह के गाजी है, हाशमी जवां हर सू हर तरफ नमाजी है। साथ इन जवानों के कौन वापस आएगा, कौन वापस आएगा। गम मदीने वालों को ये सदा रुलाएगा,
ये सदा रुलाएगा। ऊँट है कजावे है और हंसी हमारी है, फातिमा की बेटी की सज रही सवारी है, लेके कौन ज़ैनब को इस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा। गम मदीने वालों को ये सदा रुलाएगा, ये सदा रुलाएगा। फौज ये न लौटेगी और न होगी ये शाही, जा रहे हैं जो इस दम खुल्द के है सब राही, मुड़ के ना जवां बेटा और न भाई आएगा, और न भाई आएगा। गम मदीने वालों को ये सदा रुलाएगा, ये सदा रुलाएगा। हाय चैन सुगरा को किस तरह से आएगा, किस तरह से आएगा। हुसैन 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 हुसैन। اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح النبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله، السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور،
أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولده كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله. لقد عظمت الرزية وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض. فلعن الله أمة أسرجت وألجمت وتهيأت لقتالك. يا مولاي يا أبا عبد الله، قصدت حرمك وأتيت إلى مشهدك الذي لك عنده اسأل الله بالشأن وبالمحل الذي لك لدي أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك
وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا أم المصايب زينب بنت أمير المؤمنين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على شهداء جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس. السلام عليك يا أيها المدفون بأرض طوس. السلام عليك يا مضيف الشيعة والزوار في يوم الجزاء. روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا قاطع البرهان. السلام عليك يا إمام زماننا هذا. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.